Hello, my dear students, and welcome to Imavate. We are discussing the seventh chapter of Physics of Class 9th ICSE Reflection of Light. We have already done two lectures from this chapter. Lecture 1 and 2 are already uploaded in my YouTube channel. And here in this video, we are going to start with lecture number 3. So the next topic that we are going to discuss in this chapter is images formed in a plane mirror. All right. So let us start this topic. I hope you have watched both of those previous lectures of this chapter. After watching them, only you proceed with this lecture. Okay. The link of those previous two videos are given in the description box of this video. Images formed in two inclined mirrors. Now, what do we have to do over here? What do we have to study? We basically have to study that if we have two inclined mirrors here are plane mirrors. We're talking about plane mirrors. Two mirrors, one mirror and another mirror. They are inclined to each other. Means they are facing each other, but it may have some angle between them. Like this, if we have kept, and if we produce, using dotted lines, both of the mirrors, then they are meeting and an angle is formed. So this angle is important in determining the number of images that may be formed for an object which is kept somewhere in between them. So suppose I have kept an object. This dot is an object. Okay, this I have represented O I have marked O to show the object. Now the O is kept between the two mirrors, and both of these mirrors are kept with at an angle of theta between them. So how many images, what is the number of images that may be formed? तो वो depend करता है इस angle पर. At the same time, वो इस पे भी depend करता है कि whether have we kept the object O symmetrically or asymmetrically. Symmetrically means whether have we kept the object at the angular bisector. Angular bisector मतलब अब देखो ये जो एंगल थीटा है इसका मैं बाइसेक्टर मींस एग्जैक्टली एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो इस एंगल थीटा को बाइसेक्ट कर रहा हूं, मतलब एकदम हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा हूं. सो दिस लाइन इज नोन एज एंगल बाइसेक्टर. एंगल बाइसेक्टर. सो इफ माय ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एंगल बाइसेक्टर, देखो जैसे ये पॉइंट ओ जो है, ऑब्जेक्ट ओ जो है, उसको हमने एंगल बाइसेक्टर पे रखा है. उस पर भी डिपेंड करता है कि वो हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड होगा. अगर मैं इस ओ को इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट ऑन द एंगल बाइसेक्टर, इफ आई कीप इट समवेयर एल्स लाइक हियर, से ओ डैश मैंने लिख दिया, नाउ हियर द नंबर ऑफ इमेजेस माइट चेंज. तो उसके लिए फॉर्मूला है. तो दो चीजों पे डिपेंड करता है. नंबर ऑफ इमेजेस, कितना इमेज बनेगा, इट डिपेंड्स ऑन दिस एंगल थीटा. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेदर वी आर कीपिंग इट ऑन द एंगल बाइसेक्टर और नॉट ऑन द एंगल बाइसेक्टर. अगर एंगल बाइसेक्टर के ऊपर रख रहे हैं तो हम बोलेंगे we have placed it symmetrically. We have kept the object symmetrically. Otherwise, if it is not kept on the angle bisector, we would say it is placed asymmetrically. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं कि क्या फॉर्मूलाज है, क्या फंडा है. बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है. एंड देखो, write down the number of images. Write it down along with me. The number of images formed depends on the angle theta between the two mirrors. Now, two following cases are possible. What are the two cases that could be possible? Case one is when angle is such that 360 divided by the angle is an odd number. What is it? If angle theta between the mirrors is such that n basically क्या है, 360 divided by theta. 360 degrees
डिवाइडेड बाय दिस थीटा, ये 360 डिवाइडेड बाय द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स, इसको हम करेंगे तो जो वैल्यू होता है उसे हम n से डिनोट करते हैं, बेसिकली n वही है। एंड दिस इज ऑड, अगर n हमारा ऑड आ जाए, n हमारा ऑड आ जाए, तो फिर हम क्या बोलेंगे, तब उस केस में क्या होगा, द नंबर ऑफ इमेजेस इज n, कितना इमेज बनेगा, द नंबर ऑफ इमेजेस इज n, लेकिन उसमें भी शर्त है कि अगर हम उसे एसिमेट्रिकली रख रहे हैं या फिर सिमेट्रिकली रख रहे हैं, उसमें भी दो ऑप्शन है, दो तरीके का पॉसिबिलिटीज है। नंबर ऑफ इमेजेस इज n if the object is placed is asymmetrically, if the object is placed asymmetrically, जैसे मैंने बताया था दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कितने इमेजेस बनेंगे, एक तो थीटा पे डिपेंड करता है, दूसरा कि हमने उसे सिमेट्रिकली रखा या एसिमेट्रिकली रखा, यानी हमने उसको एंगल बाइसेक्टर पे रखा ऑब्जेक्ट को या नॉट ऑन द एंगल बाइसेक्टर पे रखा। सो अगर हम उसे एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखते, मींस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एसिमेट्रिकली एंड n इज कमिंग ऑड, ये दोनों कंडीशंस एक साथ हो रहे हैं फुलफिल, n ऑड है, साथ साथ हमने ऑब्जेक्ट को भी एसिमेट्रिकली रखा है, देन नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, इट वुड बी n, n वुड बी द नंबर ऑफ इमेजेस। अदरवाइज अगर हम सिमेट्रिकली रख रहे हैं तो n माइनस वन वुड बी द नंबर ऑफ इमेजेस, द नंबर ऑफ इमेजेस is n minus 1 if the object is placed symmetrically, मतलब कि n हमारा ऑड है और ऑब्जेक्ट को भी हमने सिमेट्रिकली रखा है ऑन द एंगल बाइसेक्टर, उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे n माइनस वन। ठीक है, दूसरा जो केस है वो क्या है कि हमारा ये n इवन आ जाए, इफ एंगल थीटा between the mirrors is such that n, which is 360 divided by theta, is an even number, उस केस में एक ही पॉसिबिलिटी है, चाहे हम उसे सिमेट्रिकली रखें या एसिमेट्रिकली रखें, हमें हमेशा n माइनस वन नंबर ऑफ इमेजेस ही मिलेंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ इमेजेस इज n माइनस वन फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, एसिमेट्रिकली रखो और इवन है तो भी n माइनस वन, सिमेट्रिकली रखो और n इवन है तो भी n माइनस वन would be the number of images। तो इसलिए हम इसे दो पार्ट्स में नहीं लिख रहे हैं, सिमेट्रिकली का अलग एसिमेट्रिकली का अलग नहीं लिखने की जरूरत है, बिकॉज इन बोथ केसेस, इन ऑल केसेस द नंबर ऑफ इमेजेस इज n माइनस वन फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो अब न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, रादर दो इंपॉर्टेंट चीजें जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कि अगर हमने हमारा एंगल जो है थीटा जो है वो 90 डिग्रीज पर हो तो कितने इमेजेस बनेंगे, 90 डिग्रीज पर, 90 डिग्रीज हो मतलब कुछ ऐसा फिगर कि इफ यू हैव अ मिरर केप्ट लाइक दिस एंड एन अनदर मिरर केप्ट लाइक दिस, that means you see if you produce both of these lines you would see that both of the mirrors are kept at an angle of 90 degrees, means हमारा थीटा जो है वो 90 डिग्रीज है। तो इस केस में हमारा कितने इमेजेस बनेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट हम यहां रख रहे हैं तो कितने इमेजेस बनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट दैट वी हैव स्टडीड जस्ट नाउ। तो बेसिकली एक न्यूमेरिकल भी है और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, ये 90 डिग्रीज वाला मतलब परपेंडिकुलर जब हमने दोनों मिरर्स को रखा तब कितने इमेजेस बनते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। सो लेट अस स्टडी इट एज अ सेपरेट हेडिंग, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। राइट डाउन इमेजेस फॉर्म्ड बाय two mirrors two mirrors placed perpendicular to each other, placed perpendicular to
each other. बहुत इजी है. दैट मीन्स आवर थीटा इज 90 डिग्रीज. तो पहले हम एन निकाल लेते हैं. थीटा हमारा 90 डिग्रीज है. एन का क्या है? 360 डिवाइडेड बाई 90 डिग्रीज. तो आ गया 4. एंड 4 इज इवन. 4 इवन है ना, 4 तो ऑड नहीं है. दैट मीन्स अवर एन इज इवन. एन इवन तो हम इस केस में जाएंगे, केस 2, क्योंकि एन इवन की बात हम केस 2 में कर रहे हैं. और इसमें कहा गया है कि नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n माइनस वन फॉर ऑल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स तुम क्या करो कि ये दो मिरर है जो तुमने 90 डिग्रीज पे रखा है. एंड सपोज दिस इज द एंगल बाइसेक्टर. एकदम बीच से पार हो रहा है, इनफैक्ट थोड़ा और नीचे होगा. एंगल बाइसेक्टर. तुमने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, पॉइंट ओ. देन ऑल्सो यू विल ऑब्टेन n माइनस वन मीन 4 माइनस वन, 3 इमेजेस. या फिर तुमने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया एसिमेट्रिकली. देन ऑल्सो यू विल ऑब्टेन 4 माइनस वन, दैट इज 3 नंबर ऑफ इमेजेस. क्योंकि हमारा जब n इवन होता है तो फॉर ऑल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द नंबर ऑफ इमेजेस इज n माइनस वन. तो इसलिए लिखेंगे देयरफॉर फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड in between the two perpendicular mirrors, the number of images formed is n minus 1, which is in this case 4 minus 1, 3. याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड बिटवीन when two plane mirrors are kept perpendicular to each other? एकदम इंस्टेंटली बोलना 3. 3. Another case, when images, number of images formed when the two mirrors are kept parallel to each other. Images formed by two mirrors placed parallel to each other. बड़े आराम से बन जाएगा. पैरेलल होता जब है तब एंगल बिटवीन टू मिरर्स 0 डिग्रीज होता है. दो लाइन है दोनों पैरेलल है, इनके बीच में क्या एंगल है? दे विल नेवर मीट. प्रोड्यूस कर दो, कभी भी मीट नहीं होगा. सो द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्रीज, नो एंगल. So in this case, when two mirrors are parallel to each other, the theta is 0 degrees. n हमारा निकल जाएगा 360 divided by 0 degrees. It is infinite, means undefined, जिसको हम infinite बोल सकते हैं यहाँ पर. So infinite number of reflections will happen and infinite number of images will be formed. ठीक है, क्योंकि infinite ना तो even है ना तो odd है, एक undefined number. और इस केस में अगर हम इसे मान लो कि infinite odd है मान लो, मीन्स दिस केस, तो उस केस में भी अगर हमने एसिमेट्रिकली रखा तो n मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड. अगर सिमेट्रिकली रखा तो इनफाइनाइट माइनस वन, n माइनस वन मीन्स इनफाइनाइट माइनस वन, वो भी इनफाइनाइट ही होगा. इनफाइनाइट माइनस वन इज ऑल्सो इनफाइनाइट. सो इस केस में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड. और अगर इवन मानेंगे तो भी n माइनस वन मीन्स इनफाइनाइट माइनस वन, इनफाइनाइट number of images are formed. So in whatever we may treat infinite as, whether odd or even, in fact, infinite cannot be treated either as odd or even because it is undefined. अगर फिर भी हम उसे odd मान के भी चले या even मान के भी चले तो number of images would be infinite only. लिखेंगे the number of images of an object kept in between the two parallel mirrors will be infinite. ये जो दो चीजें हमने अभी अभी पढ़ा, 90 डिग्रीज पे रखते हैं तो कितने इमेजेस होते हैं और पैरेलल रखते हैं तो कितने इमेजेस होते हैं. बिलीव मी चिल्ड्रन, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स. इसके साथ साथ कुछ रैंडम क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि थीटा अगर 72 डिग्रीज है, ऐसा क्वेश्चन मान लो, हम एक फ्रेम किया हमने कि इफ theta means the angle between two mirrors is 72 degrees, then how many
इमेजेस आर फॉर्म्ड, नंबर ऑफ इमेजेस निकालो, नंबर ऑफ इमेजेस कितना है बताओ, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे हो सकता है? देर आर टू प्लेन मिरर्स विच आर केप्ट एट एन एंगल ऑफ 72 degrees. What is the number of images formed for an object placed symmetrically between them? Symmetrically अगर रखा हुआ है तो कितना होगा? तो देखो, सबसे पहले हम n निकालते हैं, 360 डिवाइडेड बाई 72 डिग्रीज, और वो जो कि 5 आ जाएगा। एंड 5 इज ऑड, 5 इज नॉट इवन, राइट? 5 इज ऑड, मतलब हमारा ये वाला केस, केस वन। अब केस वन में दो चीजें हैं, सिमेट्रिकली एंड एसिमेट्रिकली। क्वेश्चन ने अगर बोल दिया है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, दैट मींस नंबर ऑफ इमेजेस वुड बी n-1। तो चलो, क्वेश्चन में बोल दिया गया है नंबर ऑफ इमेजेस निकालना है, एंड ये दिया हुआ है गिवन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, ये दिया हुआ होना चाहिए तभी हम बता पाएंगे। सिमेट्रिकली रखा हुआ है तो लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ इमेजेस वुड बी हाउ मच, एन 5 - 1 4। लेकिन अगर ये सेम क्वेश्चन होता, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एसिमेट्रिकली अगर होता, तो फिर हमें ये केस देखना पड़ता। एसिमेट्रिकली ऑड तो है ही, एसिमेट्रिकली में नंबर ऑफ इमेजेस इज एन, अगर एसिमेट्रिकली रखेंगे तो फिर 5 वुड बी द नंबर ऑफ इमेजेस, लेकिन ये हमने 5 - 1 किया क्योंकि क्वेश्चन ने सिमेट्रिकली बोल दिया। वेरी इजी। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है, ये जो नंबर है n, यू कैन गेट एज अ फ्रैक्शन, यू मे गेट एज अ फ्रैक्शन। जैसे मान लो कि कई बार ऐसा हो गया, n तुम्हारा आ गया 7.2, तुमने कोई ऐसा एंगल दिया हुआ है, व्हेन यू डिवाइड 360 विद दैट एंगल, सपोज तुम्हारा n एक होल नंबर नहीं आया, इट गिव्स यू अ फ्रैक्शन 7.5, देन यू हैव टू राउंड इट ऑफ, राउंड इट ऑफ, राउंड इट ऑफ। 7.5 को तुम राउंड करो, 7 हो जाएगा, एंड देन दैट इज ऑड, एंड देन यू कैन प्रोसीड। ऑलराइट, फिर उस तरह से प्रोसीड करोगे। उसी तरह का एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे, तुम्हारे बुक में कंसाइज में दिया हुआ है, राइट डाउन दैट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट is placed number one asymmetrically and number two symmetrically between two plane mirrors inclined at an angle of 50 degrees. तो 50 degrees है theta. Find the number of images formed. Find the number of images formed. बहुत easy. But here both of the cases, number one में asymmetrically, number two में symmetrically, दोनों का अलग अलग आंसर हो सकता है क्योंकि वो डिपेंड करता है हमारे थीटा के n के ऊपर। तो पहले n निकाल लेते हैं। n इज 360 डिवाइडेड बाय थीटा एंड थीटा इज 50 डिग्रीज, सो 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 50 करेंगे हम। एंड जैसे कि मैंने बताया था 7.2 आएगा, विच you will be rounding it to 7, which is odd. एंड 7 ऑड है, मतलब कौन सा केस में जाना है? ऑड वाले में। ऑड में एसिमेट्री का अलग नंबर ऑफ इमेजेस एंड सिमेट्रिकली का अलग। तो फर्स्ट वाला जो केस है एसिमेट्रिकली, सो नंबर 1 का कर रहे हैं, नंबर ऑफ इमेजेस would be n, isn't it? n is 7, so n 7, and दूसरे वाले में नंबर ऑफ इमेजेस would be n minus 1, right? That means 7 minus 1, which is 6. Asymmetrical में n minus 1 होता है. All right, so 7 minus 1, 7. Very easy. I hope you have understood this topic really nicely. Uses of plane mirror, next topic है. बहुत ही easy topic है. In fact, इसमें कुछ भी समझाने लायक है नहीं, इतना easy है. कहाँ कहाँ यूज होता है प्लेन मिरर? नंबर 1, इट इज यूज्ड एज ए लुकिंग ग्लास। स्कूल जाने के पहले अपना बाल कोम करते हो, स्टाइल मारते हो, किसके सामने खड़े होके? मिरर के सामने, प्लेन मिरर के सामने। सो यूज्ड एज अ
looking glass. Second use could be in periscope, used in periscope. What is periscope? लोअर क्लासेस में पढ़े होगे पेरिस्कोप. पेरिस्कोप कुछ इस तरह का डिवाइस होता है, यू नो, इफ एंड हियर यू हैव प्लेन मिरर्स kept like this. एक इधर प्लेन मिरर होता है और एक इधर होता है. If there is an object, say the tree, okay, यहाँ पे इधर से ट्री से लाइट रेज आएंगे जो इधर तक इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके इधर इस मिरर को हिट करेंगे, फिर इधर से रिफ्लेक्ट होके बाहर निकलेगा. एंड इफ देयर इज एन ऑब्जर्वर हु इज लुकिंग फ्रॉम दिस एंड ऑफ द पेरिस्कोप वुड बी एबल टू सी द ट्री. So ध्यान से देखो, the tree is not in the line of sight of the person, but in spite of that, this observer will be able to see the object which is not present in the line of sight of that person. line of sight मतलब कि वो जिस देख रहा है उस लाइन में वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है कि नहीं. तो उसकी वो जिधर देख रहा है, दिस इज द लाइन ऑफ साइट. इस लाइन ऑफ साइट में वो ऑब्जेक्ट नहीं है. इन स्पाइट ऑफ दैट ही इज एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन हिज लाइन ऑफ साइट. तो वो कब वो इस तरह के ऑब्जेक्ट जिससे हम ऐसा कर सकते हैं वो है पेरिस्कोप. ऑलराइट, सबमरीन्स वगैरह में यूज होता है बहुत ज्यादा. सो पेरिस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ डिवाइस वेयर प्लेन मिरर्स आर यूज. इनफैक्ट आजकल प्लेन मिरर यूज नहीं करते, आजकल प्रिज्म्स यूज करते हैं, प्रिज्म्स. तो वो क्लास 10th में पढ़ोगे, हायर क्लासेस में. वैसे हम प्लेन मिरर से भी बना सकते हैं. A lot of students make periscope in their science exhibitions. It is used in solar heating devices. Used in solar heating devices like solar cookers, solar water heater. Plane mirror is used to reflect the incident light from the sun on the substance. जिसको गर्म करना है उसके तरफ the plane mirror focuses the incident rays. So it can be used in solar heating devices. All right, it is used in a toy known as kaleidoscope. It is basically a toy where you can see a lot of beautiful patterns. And toy होता है, कोई काम का वैसा नहीं है, but it is simply a toy with which you can obtain. If you look into the kaleidoscope, you can see a lot of beautiful patterns. Okay, so inside that also we use plane mirrors used in kaleidoscope. So these 4 uses are enough, and this is all for this video. We will be continuing with the next topic, that is spherical mirrors, in the next upcoming lectures. Until then, spherical mirrors. Until then, let us say goodbye, and we would meet. देखो spherical लिखने में बार बार गलत हो रहा है. Okay, spherical mirrors, and we would meet in the next class with this topic. Thank you all of you. God bless you. Take care.